I'm a general physician. So in this COVID time, there are lots of chronic diseases which need to be actually taken care of. And the most foremost is respiratory disorders. As we all know, COVID is a respiratory virus. So it will be putting a double impact when a person suffering from a respiratory disorder, he suffers from COVID. So today would be discussing more on asthma and COPD. And what is asthma and COPD? What all precautions to be taken by the COVID patients? How does asthma and COPD comes? What are the risk factors, triggers? What is the treatment? How the patient should take care during the COVID times? So first of all, what is asthma? First of all, both the things are obstructive airway disease. In asthma, there is an expiratory airflow limitation, and it is a variable obstructive disease, whereas COPD is a progressive obstructive disease where there is persistent airflow limitation. So what are the triggering factors in both? The most important difference between the two is that asthma is variable, whereas COPD is persistent. So while we are doing the diagnosis, while doing the LFTs, lung function test, at that time we can find out that asthmatic patients may not be showing any features of having obstructive airway disease, whereas for COPDs, the spirometry will always be showing the features of obstructive airway disease. So there are certain trigger factors, there are certain risk factors due to which these disorders take place. So first and foremost, is there any role? So yes, asthma is more of a genetic disorder. There are hundreds of genes which may be involved. It is multifactorial. It is an atopic disease. अगर किसी के घर में फैमिली में एस्थमा है या एटोपिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस या एक्जिमा या माइग्रेन, तो ऐसे घरों में जो बच्चे हैं, देयर आर इट्स लाइक 7-fold चांस, 7 गुना ज्यादा चांसेस हैं उधर बच्चों को एस्थमा होने के. Whereas COPD has a genetic side as well, but there's only very few genes. The most important is that there is a deficiency in alpha-1 antitrypsin deficiency. So then there are certain environmental factors. Asthma, especially, there are 2 to 3 things. The children who are born to the mothers who've undergone cesarean section are more prone to get asthma. Why? Because they haven't passed through the birth canal, which is the first place where the child gets his or her immunity. Another important thing is premature baby and low birth weight babies are more prone to get asthma because they are born with underdeveloped lungs. Then maternal smoking plays a big role. Children who are born to the mothers who smoked during their pregnancy will have more chances of developing asthma, as well as the grandmothers who have also smoked during their pregnancy time, their grandchildren would have more chances to develop asthma. Then there are indoor and outdoor air pollution, which is a similar thing in both asthma and COPD. So indoor air pollution can be in the form of incense stick, in the form of धूप बत्ती, and it's been seen कि ये जो धूप, ये जो इंसेंस स्टिक्स हैं, ये जब बर्न करती हैं, जब ये बंद भी हो जाती हैं, उसके 2 घंटे तक भी पॉल्यूशन बरकरार रहता है. So even when you light a mosquito coil, that one mosquito coil is equivalent to smoking 100 cigarettes. So need to actually take care in the houses where these people are there. Asthma and COPD patients are there, and that too in this COVID time more often. So even outside air pollution, we all know that the houses which are close to the roads, there's more of the air pollution, and therefore the children living in those houses, the older people are more prone to get asthma and COPD.
as well. It has been seen that the diesel particles, when those fumes they come out, they increase the allergenicity of the allergen, pollen grains or something. So, you need to actually take care of the pollution. So there are certain other trigger factors as well in asthma, like smoking, I told you. For COPD to take place, the most important thing is smoking. But still it's been seen that 50% of the smokers do not develop COPD. But smoking is the most important factor. Then another important factor is biomass fuel. ड्यू टू दिस बायोमास फ्यूल, जो हमारे देश में चूल्हा जलता है, जहाँ पे फीमेल्स आर वर्किंग, छोटे बच्चे भी उनके अराउंड रहते हैं, which doesn't let the lungs to develop for a child, and therefore the child may develop asthma, or in the later age may also develop COPD. Important thing here is that asthma is a disease of an early age, childhood or early adolescence, whereas COPD develops in the people above the age of 40 years. So there are certain trigger factors like psychological stress, smoking, exercise is a very, very important trigger factor in asthma. So we always prefer that an asthmatic child or an asthmatic person, when he or she goes out for an exercise, should take his or her drug, like should take their inhalers before going out for exercise. Then strong smell like perfumes, fumes, and stress, anger, anxiety. These are all the trigger factors for asthmatics. Now, what happens in asthma? What is the pathophysiology? How asthma takes place? In the asthmatics, like if this is the airway, this is the lumen of the airway. For asthmatics, this lumen would be reduced to this. And why would this lumen be reduced? Because asthma is a hyper-responsive disorder of the airways. Now, what do you mean by hyper-responsive disorder? Is that there is smooth muscle contraction. Due to the contraction of the smooth muscle, the airways contract and there is increased secretion of the mucus because there is mucus gland hypertrophy. If these things are not taken care of, the airways undergo remodeling. What do you mean by airways undergoing remodeling? का मतलब है कि जो आपके एयरवेज में irreversible changes आ जाती हैं, कि जो भी changes आ जाती हैं वो बाद में आप उसको ठीक नहीं कर सकते. एस्थमा में सबसे बड़ी बात है कि कुछ लेवल का इन्फ्लेमेशन जरूर रहेगा बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर कुछ लेवल का इन्फ्लेमेशन जरूर रहेगा. तो जैसे इतने लेवल का इन्फ्लेमेशन है, पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आया, बट दोबारा कोई उसको ट्रिगर फैक्टर आया तो इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ गया, फिर इतना बढ़ गया. सो वंस द थ्रेशोल्ड रीचेस, देन द पेशेंट स्टार्ट्स गेटिंग सिम्टम्स. अभी क्या सिम्टम्स होते हैं एस्थमेटिक्स में? सो एस्थमेटिक्स में सबसे पहले देयर इज अ व्हीज. नाउ व्हाट इज अ व्हीज? इट इज लाइक अ विसल साउंड इन द चेस्ट. आपकी छाती में जैसे सीटी बजती है, सांस लेने में दिक्कत है, ब्रेथलेसनेस होती है पेशेंट को, खांसी है. खांसी जो है एस्थमेटिक्स में नॉन प्रोडक्टिव है, यानी कि सूखी खांसी है. मेरे सीओपीडी पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले है डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि उनकी एज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द एस्थमेटिक पेशेंट्स. फिर उनको भी ब्रेथलेसनेस होती है, देयर इज डिस्निया, एंड उनकी जो खांसी होती है विद दैट देयर इज रिलीज ऑफ कोपियस अमाउंट ऑफ स्पूटम, यानी कि बहुत बलगम निकलती है सीओपीडी पेशेंट्स में. Whereas asthmatics की जो खांसी है that is dry cough. Asthmatics will get dry cough. So these are some of the symptoms. COPD में क्या रहता है कि कुछ चेंजेस आप लंग्स में पाएंगे. नॉर्मली लंग कैसा है? पिंक कलर का है. COPD ड्यू टू द बहुत ज्यादा जो स्मोक के they have come in contact with the smoke, with the occupational smoke, with the biomass fuel and all. COPD पेशेंट्स का जो लंग है वो काला पड़ जाता है. COPD पेशेंट्स का जो नॉर्मल लंग है वो बड़ा स्पॉन्जी और सॉफ्ट होता है. COPD पेशेंट्स का जो लंग है वो इनइलास्टिक है, बहुत रिजिड, बहुत फाइब्रोटिक हो जाता है. और COPD में बेसिक पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है
कि सीओपीडी इज बेसिकली अ डिजीज ऑफ द स्मॉलर एयरवेज, छोटे एयरवेज को जो नीचे जाकर हैं उनमें ज्यादा इफेक्ट होता है सीओपीडी का। तो सीओपीडी में बेसिकली क्या रहता है कि अब कोई भी जो जब पेशेंट व्हेन द पेशेंट इज इंस्पायरिंग एंड व्हेन द पेशेंट इज एक्सपायरिंग ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, तो धीरे धीरे करके उनके जो स्मॉलर एयरवेज हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। क्यों कोलैप्स हो जाते हैं? क्योंकि जो एल्वियोलर अटैचमेंट्स उनको जो हम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में जो एल्वियोलर अटैचमेंट्स हैं वो उन एयरवेज को खोल के रखते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो उन एयरवेज को खोल के रखते हैं। पर सीओपीडी पेशेंट्स में क्या होता है कि जो इलास्टिन है उसकी डेफिशिएंसी होने लग जाती है। तो इलास्टिन के खत्म हो जाने के कारण एल्वियोलर अटैचमेंट्स खत्म हो जाती हैं और क्या होता है कि जो आपका लोअर एयरवे है वो कोलैप्स कर जाता है। अब उसकी कोलैप्स करने के बाद क्या होता है, व्हेन द पेशेंट इंस्पायर्स, वो पूरी तरीके से हवा को बाहर नहीं निकाल पाता। तो क्या है कि वहां पे फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, यानी कि लंग्स में जो कि 1 मिनट में खाली हो जाने चाहिए थे विद द इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन व्हिच इज नोन एज द फोर्स्ड एक्सपीरेटरी वॉल्यूम एट 1 सेकेंड, वो चीज सीओपीडी पेशेंट्स में नहीं होती क्योंकि उनके अंदर हवा बढ़ती जा रही है। तो उसके चलते उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। जब सांस लेने में दिक्कत है तो चलने में दिक्कत है। सीओपीडी पेशेंट्स का एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हो जाती है, वो चल नहीं पाते, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन की बहुत जरूरत होती है। रिहैबिलिटेशन इन द वे कि वी मेक देम वॉक, 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हैं कि 6 मिनट में कितना चला और धीरे धीरे उनका बढ़ाते हैं along with the drugs which I'll be discussing later. Then उनके न्यूट्रिशन को बहुत अच्छा करते हैं। They should be given more of the protein diet as it is a progressive disorder. There are certain comorbidities which are associated with both asthma and COPD. Asthma के जो patients हैं उनमें एलर्जी का कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। तो जैसे किसी को एलर्जिक राइनाइटिस है या राइनोसाइनोसाइटिस है, जिसका मतलब है कि अगर सुबह जो लोग उठते हैं, कई लोग होते हैं जिनको सुबह उठते बहुत छींकें आती हैं, या मोटापा है, या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, जैसे कि उनके जो रिफ्लक्स है, जो भी वो खाते हैं उनके मुंह में आ जाता है, उनके इसोफेगस में इन्फ्लेमेशन होती है एंड ऑल करके, सिंपल वर्ड्स में उसको गैस्ट्राइटिस भी मैं बोल सकती हूँ। तो जो ऐसे लोग हैं उनमें एस्थमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दीज आर नोन एज एस्थमा मिमिक्स, कि एस्थमा जैसे अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस को क्योर नहीं करोगे, आप जीआरडी को, गैस्ट्राइटिस को क्योर नहीं करोगे, चाहे आप जितना ट्रीटमेंट दे दो इन द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स और ड्रग्स व्हाटएवर, आप एस्थमा को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज फिर से ट्रिगर करेगी और पेशेंट को एस्थमेटिक अटैक आ जाएगा। इसी तरीके से सीओपीडी पेशेंट जो है, इसकी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है। सीओपीडी सिर्फ लंग्स तक में सीमित नहीं है, हर सिस्टम में आएगा। जैसे कि आपके हार्ट को इन्वॉल्व करता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, आपके स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सीओपीडी के पेशेंट्स में ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन भी पाया जाता है। तो इट इज अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन एज अ होल। अब ट्रीटमेंट की जब बात आती है, एस्थमा, यहाँ ट्रीटमेंट की जब बात आ रही है, यही सेम ट्रीटमेंट कोविड पेशेंट्स को भी लेना है अगर वो एस्थमेटिक और सीओपीडी में हैं। सबसे पहली बात है कि क्या ये सवाल पूछा जाता है, क्या कोविड ज्यादा इन लोगों को होता है जिनको एस्थमा और सीओपीडी है? सो माय आंसर वुड बी नो। ऐसा नहीं है कि जो एस्थमेटिक्स हैं या जिनको सीओपीडी है उनमें कोविड ज्यादा होगा, बट there's one very important thing is कि जिसको अगर एस्थमेटिक को कोविड हुआ है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्यों कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने के चांसेस हैं? बिकॉज कोविड ऑलरेडी आपके लंग को इफेक्ट कर रहा है, और हमारे देश में ये पाया गया है कि ट्रीटमेंट बिल्कुल, I mean 90% of the people are not taking the treatment in a proper way, the asthmatics as well as the COPD patients. So the treatment has to be taken properly. So now what should be the treatment for the asthmatics and COPD? तो मैं आपको मैंने बताया कि इन दोनों कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन होती है। मैंने आपको बताया कि एस्थमा में कुछ अमाउंट इन्फ्लेमेशन की हमेशा रहती है। तो जो एस्थमेटिक पेशेंट है,
अब इन्फ्लेमेशन के लिए क्या देंगे? एंटी इन्फ्लेमेटरी. सो व्हाट इज द विच इज द बेस्ट? द बेस्ट वन वुड बी द इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. स्टेरॉइड्स को इनहेलेशन के फॉर्म में, यानी कि स्टेरॉइड के इनहेलर्स देने बहुत जरूरी है. स्टेरॉइड को गोली के रूप में खाना जरूरी नहीं है, यानी कि सिस्टमिक स्टेरॉइड लेने से ज्यादा इनहेलर के रूप में स्टेरॉइड देना ज्यादा जरूरी है. फिर क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है तो आपको ब्रोंको डायलेटर देना जरूरी है. पर मोस्टली क्या पाया जाता है कि लोग ब्रोंको डायलेटर ले लेते हैं, लेकिन स्टेरॉइड की हमारे देश में आज भी इतनी स्टिग्मा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं स्टेरॉइड नहीं लेना. अरे क्यों नहीं लेना? Steroid, corticosteroid, inhaled corticosteroid is the mainstay of treatment for asthmatics as well as COPD patients. And even in this COVID era, it is the best treatment. It is the best. Even in the COVID era, we can give oral steroid tablets as well. यानी कि systemic steroids भी दिया जा सकता है. It would be very much preferential, very much beneficial to the COVID patient as well. तो अब क्या रहता है कि आपको इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, आपको इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स देने हैं. क्या है, पेशेंट ने ब्रोंकोडायलेटर लिया, स्टेरॉइड नहीं लिया, इन्फ्लेमेशन रही उसके अंदर, कुछ टाइम के बाद कोई ट्रिगर आया, बीमारी एक्सेसरबेट कर गई. तो ये दोनों चीजें लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कोविड के टाइम अब ये देखा जाता है लोगों को इनहेलर से बहुत डर लगता है कि नहीं नहीं इससे तो आदत डल जाएगी, ये तो ठीक नहीं है, हमारी बहू इनहेलर ले या मेरा बेटा इनहेलर ले, नहीं 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 आप टैबलेट खा लो. अरे आपको ये छोटी सी बात समझनी है कि जो टैबलेट आप खा रहे हैं वो कम से कम 20 से 30 गुना ज्यादा दवाई आपके अंदर जा रही है. सपोजिंग आप एक इनहेलर लेते हैं 100 माइक्रोग्राम का, जिसके 2 कफ लेते हैं, आपके अंदर क्या गया? 200 माइक्रोग्राम का ड्रग गया. और वो ड्रग कहाँ गया? डायरेक्टली आपके लंग्स में गया. पर अगर आपने टैबलेट खाई है, टैबलेट आपने अगर 4 मिलीग्राम की खाई है जिसके अंदर 4000 माइक्रोग्राम ड्रग है, जैसे कि 20 गुना ज्यादा ड्रग है. अब वो 20 गुना ज्यादा ड्रग कैसे जाएगा? आपने मुंह से गोली खाई, सबसे पहले आपके पेट में जाएगा, पेट से आपके ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगा, फिर कहीं बहुत देर के बाद आपके लंग्स में जाएगा, और लंग्स के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों में भी जाएगा जहां उसके जाने की कोई जरूरत नहीं है. वेरस जब आप इनहेलर लोगे वो कुछ सेकंड्स में ड्रग आपकी जिस जगह पे जाना है वहां जाएगा, वहां एक्ट करेगा, एंड इट वुड बी सो गुड, सो इजी एज वेल. इसलिए कोविड के टाइम पर भी इनहेलर्स अपने चालू रखिए अगर आप लेते हैं. हाँ, कोविड के टाइम पर द बेस्ट इनहेलर्स विच शुड बी टेकन आर DPIs, यानी कि ड्राई पाउडर्ड इनहेलर्स. दूसरी एक चीज है, पेशेंट्स कुछ नेबुलाइजर्स भी लेते हैं. अगर आप नेबुलाइजर ले रहे हैं, अगर घर में आप ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, क्योंकि नेबुलाइजर से बहुत ज्यादा एरोसॉल जनरेट हो सकते हैं. तो आप घर के और अगर आप कोविड ग्रस्त हैं तो आपका जो एरोसॉल निकलेगा वो घर के बाकी लोगों को भी उससे वो इनहेल कर सकते हैं. तो बेटर है कि या तो अपने अपने बंद कमरे में लीजिए, नहीं तो नेबुलाइजर को अवॉइड कर सकते हैं. इस टाइम पर कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हम ऑलरेडी पेशेंट्स को बताते हैं. अगर मरीज पहले से ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहा है, then it's okay, he or she can continue doing the breathing exercise. But अगर वो नहीं करता तो नई एक्सरसाइज करने की इस टाइम पे कोई जरूरत नहीं है. स्टीम आप इनहेल कर सकते हैं, दैट इज वेरी सेफ. तो इस तरीके से आप ब्रोंकोडायलेटर्स लेंगे, आप इनहेल स्टेरॉइड्स लेंगे. तो ये मैंने आपको एक बात बताई. दूसरी, COPD पेशेंट्स में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ वैक्सीनेशंस भी करते हैं. तो वैक्सीनेशन किस तरीके की होती है? एक तो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो साल में एक बार दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट स्ट्रेन इज देयर एट दैट पार्ट ऑफ द टाइम, तो उसके हिसाब से वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है. दूसरी है न्यूमोकोकल वैक्सीन विच कम्स इन 2 फॉर्म्स, PCV13 एंड PPSV23. PCV13 इज अ लाइफ टाइम वैक्सीन. देन PCV13 देने के 8 से 12 महीने के बाद PPSV23 दिया जाता है, जिसको 5 साल के बाद उसकी बूस्टर डोज भी हम दे सकते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बनी रहे. ऐसे लोग थोड़े से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो कोविड के टाइम पे उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है. कोशिश करना है कि वो घर से ज्यादा बाहर ना निकलें. इन केस वो निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने व्हीकल में जाएं,
पब्लिक व्हीकल्स में ट्रांसफर ना पब्लिक व्हीकल्स में ज्यादा ना जाएं। दूसरी चीज है, दे शुड ऑलवेज हैव देयर मास्क ऑन, मास्क हमेशा पहन के जाएं। सोशल डिस्टेंस कम से कम हमेशा 6 फीट की हमेशा मेंटेन रखें। जब वो खांसें छींकें या थूकें, खांसें या छींकें तो अपनी कोहनी को आगे करें, अपने हाथ को नहीं करें, बिकॉज आपको नहीं पता चलता, आप उसी हाथ को फिर नाक मुंह आंख पर लगा लेते हैं। कोहनी से खांसे, कोहनी पर ही छींकें। और उसके बाद जो आपकी बलगम निकल रही है कुछ है, उसको टिश्यू पेपर में लेके उसको डिस्कार्ड करें। एंड देन यू बेटर वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली बिफोर टचिंग एनीथिंग। जो सरफेस ज्यादा यूज होती हैं उनको बार बार डिसइंफेक्ट करना चाहिए, जैसे कि दरवाजों के हैंडल हैं, सीढ़ियों की रेलिंग्स हैं या कुछ है, बिकॉज इन पर वायरस बहुत घंटों तक भी पड़ा रह सकता है। तो इनकी सफाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में देनी है कोविड के टाइम पे। और कोविड के टाइम पे आपको ये भी देना है कि कुछ ना कुछ, बिकॉज सीओपीडी पेशेंट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी होता है, तो कोई ना कोई एंटीऑक्सीडेंट्स देने भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं मरीजों को कोविड के टाइम पे। तो प्लीज ऐसे पेशेंट्स को एंटीऑक्सीडेंट्स भी दीजिए, और इनहेलर्स का पूरी तरीके से प्रयोग कीजिए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और उनका सबसे बड़ी चीज है कि उनको अपनी दवाइयों को कम से कम 2 या 3 महीने की, 90 दिन की दवाइयां हमेशा अपने पास रखें, सो दैट अगर कोविड हो जाए और उनको आइसोलेट होना पड़े तो उनको बाहर ना जाना पड़े। दूसरा, पल्स ऑक्सीमीटर उनको बहुत जरूरी अपने पास रखना चाहिए। दिस इज अ पल्स ऑक्सीमीटर। और पल्स ऑक्सीमीटर से क्या है कि कम से कम 6 घंटे में अपनी ऑक्सीजन चेक करते रहें। और जहां उनको लगता है कि 95 से नीचे ऑक्सीजन जा रही है या कुछ है, क्योंकि कोविड में एक चीज है कि या तो पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिक पाया जाएगा कि उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते, नहीं तो जो सिम्टम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एस्थमा में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत है, खांसी है, और एस्थमेटिक पेशेंट्स की जो सिम्टम्स हैं वो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट में ज्यादा बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो सीओपीडी के जो सिम्टम्स हैं उसमें ब्रेथलेसनेस है, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो लोग ऑलरेडी ऑक्सीजन पर हैं वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखें। पर हाँ, अगर आप कोई ऑक्सीजन घर पे नहीं लेते हैं तो, और आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है, अगर आपकी ऑक्सीजन 90 से नीचे जा रही है, then you better contact the hospital because it is not safe to take oxygen at home. Domiciliary oxygen is not advisable. जो आजकल ये फैंसी ऑक्सीजन जैसे आ रखी है, छोटे छोटे जो सिलेंडर्स हैं, दे आर अटर वेस्ट, यू नीड नॉट गो फॉर दोज। एंड उससे अच्छा रहेगा कि यू टॉक टू योर डॉक्टर, और 6 घंटे में अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक कीजिए। क्योंकि ये देखा गया है कि सीओपीडी और एस्थमा के पेशेंट्स कोविड के टाइम पे देयर इज समथिंग कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया। इट्स नॉट ओनली इन द सीओपीडी एंड एस्थमेटिक पेशेंट, ये किसी को भी हो सकता है। आपको सिम्टम ही नहीं आते कि आपकी ऑक्सीजन लेवल गिर रही है एंड आप 80 तक के लेवल पर आ जाते हैं, और तब कहीं जाके पता चल रहा है कि ऑक्सीजन लेवल इतना गिर गया है। तो इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर से प्लीज चेक करते रहिए, और जहां दिखे कि ऑक्सीजन लेवल्स बहुत गिर रहे हैं, इमीडिएटली गो टू द हॉस्पिटल। जहां सांस लेने में दिक्कत है वहां फटाफट आप हॉस्पिटल में जाइए। सो ये सारे एहतियात तो आपको बरतने ही चाहिए in this COVID era. Any questions? स्मोकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इस टाइम पे स्मोकिंग नहीं करते हैं तो सीओपीडी पेशेंट्स बहुत अपने लंग्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो जो स्मोकिंग करते हैं अगर वो स्मोकिंग छोड़ते हैं तो इट इज रियली गुड। दवाइयां टाइम पे लें, पूरी तरीके से लें।
कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकता है।